हेलो भाई साहब. Yes, Sudhir. Yes, Vipul. Yeah, last time's recording you'll be posting someday. Oh, I forgot. I will share it. Don't worry. I'll Yeah, share yeah. it by tomorrow. Yeah. Okay. So today's meeting, how do you want to start? Deepak bhai, your Yeah. thoughts on previous meeting and next meeting, today's meeting? No thoughts on previous meeting. I have new thoughts. Okay. Yeah. We'll discuss. Yeah. Okay. We'll discuss. Yeah. नहीं तो आप ही से शुरू करते हैं, बोलिए. अरे मैं तो क्या शुरू कर सकता हूँ, मैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा. हाँ, तो टाइम है ना हमारे पास सॉल्व करने के लिए आपका प्रॉब्लम. नहीं तो आप एंड में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो कैसे Yeah. See, our core committee members, they all know what is world peace, right? And they are behind it from different angles. And many such organizations are also there who are day and night behind world peace, world unity, whatever we name it. The aim, the target is same. Right. Now, the main thing what I feel personally is we have to create a momentum. We have to make this thought process viral in real sense and create activism. Right? So that in any way, in any form, we can really uplift the global society, global community, global citizens, whatever we say, in real terms, and uplift all at a time. And now it is high time to be active without discussing any, this is my personal view, very honestly, without discussing any other strategies or feelings or views or thoughts or whims or whatever it is, just to focus on the target that now let us uplift the global community under any banner, by hook or crook, by Sam, Dam, Dand, Bed, through any good resources, not bad resources. And we should establish the fact or system, whatever a common consensus agrees that this is the best way to bring peace on this earth. So I think we should create a big mass of those who understand this philosophy or concept or dream, whatever we say, and make so many centers, whatever, like humanist movement centers or parks. We may not spend money, but we should create groups everywhere, world over. And interconnect them through internet and WhatsApp and Facebook and Instagram, whatever it is, and create different levels of leadership. Those who are fully dedicated, those who are part-time dedicated, those who are going to support in any form, materially or financially, and develop a hierarchy, not of leaders, but of level of activists, and make it very strong movement so that we can achieve the result. Because we all understand that something major change is required. Everybody we may have different opinion, doesn't matter. But ultimate goal is same, that we need food, we need to cook to eat lunch. So let us cook that, whatever is required. And I have a directory of such groups world over, different groups. All of their motto, all of their target or dream or activity is leading in the same direction. So why not to bring them on one platform? And such activists may not be active with our activities or in our group, but simultaneously, let us create a very big group of youth from colleges and from the market, from the society, from different countries, and join them in one single thread. And because of the webinar culture, it has become very easy now. I don't think it is very difficult. And once it will go viral, I don't think any dream is not achievable. If Dhirubhai Ambani can become Dhirubhai Ambani in one single small life, or one person, one such a primary teacher's son
or grandson can become top richest man out of selfishness, let me say this way, on this planet in one single small life only, then this is a task of a global welfare. Why it is not possible to achieve it? It is definitely possible to achieve. The only thing is that we need a good active leadership for that, constant leadership, innovative activism, because we just go on talking only what is required. How to implement it, we have to start it. The way humanist movement has created 100, more than 100 parks world over in one single life only, under the leadership of Ceylon. And another 100, 200 may develop within 10 years. So it is a big, gigantic task to develop one park, right? For a group without any corpus. And this is happening world over. On the same line of thinking and understanding, why not to develop groups only? Active groups. Those who remain connected periodically. And then go for a physical meeting also, mass meeting, and create a movement and create a demand from the society and from and pressurize the governments, different governments, that you all government, we should pressurize the government that you also support us in any form. And let us establish the solution. I use the word solution specifically intentionally because I don't want to promote my philosophy. But let us go and work out the common solution by going through different concepts that is moving world over nowadays, whether it is a humanist movement philosophy, or whether it is a CBW philosophy, or whether it is a global government philosophy, or whether it is a borderless global democracy philosophy, or whether it is a world parliament philosophy. So many groups, they are very active. One group has developed so many theses, and they have uploaded different theses on running such solutions. I will not use the word ministries because otherwise you may think that I am focusing on government only. No, that's why I'm not mentioning very clearly. But that gentleman in Vancouver has developed a site where he has uploaded different theses that how we can have the best different ministries on this planet with zero error. That is the best guideline. Yeah. So we know that so many groups have been working for so long. We have to combine. No, the question to be asked first is why hasn't it become a reality so far? Because we are scattered. We are not united. And we are peace activists. We are peace activists. See, if I become a radical activist, then it will show the result or reaction on the spot. But establishing peace, it requires a long exercise because it is basically nobody's interest except those who are dedicated people. But if it is your selfishness, then you'll find thousands of people at the headquarters of. Now it is not happening because it is online. You know about share market. You will see the herd of people because where there is the honeycomb of profitability. So over there, you will find so many hundreds or thousands of people. But in political activities, it is all bot groups. Majority are paid money to come and have a public meeting of 1 lakh people. It is visible only in religious activities where you find thousands of people, because human being is very much absolutely blank about what beyond death, what beyond birth, and what is life and what is God. So there, out of curiosity and fear, they go to the gurus. Otherwise, you will never find big masses until unless they have vested interests. So this is such an activity where you will not find very big masses unless until they are under some pressure to have, like Hong Kong, like Sri Lanka. My thing is that I think so many groups are working at it. The reason not a good leadership. There is no good leadership. No, I think there is no consensus on the model. That is the problem. I said that we have to bring consensus. Everybody has their own model, and that model has so small following that mass movement is not happening. So even here, we are trying to arrive at a common model. At least if 5 people can't agree on a model,
then how can Yeah. we say 5 crore or 50 crore people? No. It is not that the 5 people will not come to one single opinion. We have to start talking. And I'm sure we all 5 or 6 whosoever, they are all mature people to understand the thinking of others. Yeah, I am sure they will not be hiding their faces. right. And once the groups have good interaction, open-hearted interaction, people are really appreciative for the best possible solution. But the thing is that the limitation that I have been observing is that if I talk about constitution, I'm just madly behind constitution only. If I talk about government, then I'm madly behind government only. Yeah, I don't have open heart and mind right. that a good leadership only can give. Mm. And when you have a very good open heart and mind, by accepting everybody's philosophy or feeling and give it twist in the right direction, that is the job of a leader. Mm. See, I went to Bombay to meet all these Modi Bhai and Nailes Bhai and that lady professor, I forgot, Ruqayya madam and all these people, that I need your permission to join World March. And they very well welcomed me. Otherwise, I was knowing nothing about humanist movement. I knew only that they are going for a second world march. That is openness. They never question my, am I right? I had come to take permission with you, na? And nobody objected why you want to go. See, that is No, openness. That is there is openness. no question for approval Exactly. and permission Yes, no. and all. Even though, since I was novice, so I thought that let me have a confidence of our Indian team. So they know that this is my intention. So that is the broad-mindedness that every people have, every member have in humanist movement, and they are focused in their activities of division or whatever it is, and that is the great thing that I found in humanist movement. So on the same line, we need to unite and bring all such different people under one umbrella. Yeah. Amit So bhai? and so many people, I have entire directory of such people who are really craving for this movement, this Right. activity. So we should invite them respectfully at least once to convince them that we are trying to create open forum with broad heart and mind and Right. bring all of you as a leader together. Right. They may have a hidden ego, never mind about it, Yeah. because when they have dedicated, let them have ego. Yeah. So only then we will be able to create a big movement. Otherwise, it is not possible. Even if you try, I know one Mr. Chandel is there. He is Chandel or something like that. He's visiting all religious leaders. I guaranteed him that you will not succeed. You will fail, because religious leaders have no interest in such movement, because they are already successful in befooling people in the name of religion. So very rarely, because we had invited Ravi Shankar Sastri ji in a gathering of 5,000 people in Manhattan, New York, on the second International Yoga Day. It was arranged by Global Citizens Forum and Global Citizen Ambassador of United Nations, Mr. B.K. Modi. And in our greenhouse meeting, only with 50 people, in a press conference, I very openly asked the question to Sri Ravi Shankar, that this movement is going on and B.K. Modi ji is a leader of this activity. What will be your role as a religious leader? You have a very big following. And Mr. B.K. Modi tried to invite Ramdev ji, Ravi Shankar and Sadhguru, all three together. Right. To make it a big mass movement. But you know, the एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती. तो दूसरे दो ने ना बोल दिया कि वो आ रहा है तो मैं नहीं आऊंगा और मैं आ रहा हूँ. So they are so bloody selfish people, and they are just befooling people in the any religion. I am not focusing on any religion. So we don't have much hope from the religious leaders. We can definitely invite them, but leadership is required from the common man like me. You have an open heart, open understanding, open mind, and connectivity with so many such groups. Right. And invite them physically for a 3 days, 4 days conference, maybe in a big place,
like Delhi or Vigyan or like that, and have a focused talk only. See, you have also attended, I have also attended global, global symposium in Lucknow and Calcutta also. But it is a hodgepodge. That they have given the name only of global symposium. But there is a Kavi Sammelan also, there is a drama Sammelan also, there is a Playboy Sammelan also. It's all not leading to the right direction. It should be Right. focused on one subject, that we want to go for this result-oriented activity. You present your case, we will discuss and combine the efforts where you are also comfortable, I am also comfortable, all are comfortable with their own philosophies. Right. Amit See, bhai? there is one Mr. Yeah, Deepak Andrews bhai. Gumel. Let's Yeah. give a Please. chance. Yeah, let other people. Yeah, sure. Yeah. Thank you. Thank you for your favor. Yeah. Yeah, Amit bhai. जी अच्छा, मैं हिंदी में ही बोलूंगा क्योंकि मैं हिंदी में सोचता नहीं हूँ, कोई तो बात मुझे नहीं। लगता है कि हम तो दिल खोल आपके के बात हृदय की करने के बात लिए सुनते हैं। नहीं, दिल खोल के बात करने के लिए आप जिस लैंग्वेज से आप सोचते हैं, अगर उसी लैंग्वेज में बात करेंगे तो अच्छी तरह से आप उसको रख सकते हैं। ये मैं मानता हूं। जरूर। तो पहला चीज देखिए, मुझे जो लग रहा है कि जिसके लिए आज हम लोग 4 लोग मिले हैं, 5 लोग मिले हुए हैं, कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है हमको पहले समझना पड़ेगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वननेस और पीस, ये दो चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? आइदर वननेस अचीव करेंगे पीस के लिए, और क्या मतलब हमको थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी चीज करने के लिए उसका एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है, जो मैंने हर कोई भी उसको प्रैक्टिस में ला सकता है, और हम लोग लाते भी हैं, और उसी तरह से काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज हमको करना होता है तो उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। बिना इच्छा शक्ति के मैं एक पानी का गिलास भी उठा नहीं सकता। तो इच्छा शक्ति चाहिए। तो इच्छा शक्ति कहाँ से आती है? तो इच्छा शक्ति जो आती है नॉलेज से आती है। अब जिस चीज के ऊपर नॉलेज बढ़ता है, अब उसमें विल बढ़ता जाता है, और उसी हिसाब से पावर क्रिएट होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतने सारे जो श्रीनाथ जी बता रहे थे, आप बता रहे थे कि इतने सारे ग्रुप काम कर रहे हैं, तो अभी तक ये सारी चीजें हो क्यों नहीं रही? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर कोई ये चाह रहा है। अगर हर किसी से आप पूछे तो दिल से बताएगा रियली आई वांट पीस, बिकॉज इट इज इनेट डिजायर। हर किसी का एक अंदर से है, उसको पीस चाहिए। वो कितना भी अशांत आदमी हो, लेकिन आपको बोले आपको पीस चाहिए, बोलेगा हाँ भाई मुझे पीस चाहिए, है ना? तो पीस का जो परिभाषा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग उस लेवल के नहीं आए हैं पीस का या वननेस का। इसके वजह से हमारे उस लेवल का विल नहीं क्रिएट हो पा रहा है, और जिसके ये से वो पावर नहीं क्रिएट हो पा रहा है। क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए, जब आपको देखिए, अगर कोई साइंटिस्ट अगर रिसर्च करता है, तो उसको अगर उसका रीजन आउट मिल जाता है ना, वो तुरंत वो प्रोडक्ट को बना लेता है। तब तक उसका मतलब ये होता है कि उसको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है कोई भी चीज का, मतलब वो नॉलेज चाहिए। क्योंकि उतना डेप्थ नॉलेज चाहिए वननेस के ऊपर में, उतना डेप्थ नॉलेज चाहिए पीस के ऊपर में, तभी हमारा विल जो उस लेवल का जाएगा, वो पावर क्रिएट करने के लिए जो ये कर सकता है। तो ये डिजाइन से पहले, मुझे ये लगता है कि डिजाइन से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वननेस, व्हाट इज पीस। मुझे लगता है कि ये दोनों सिनोनिमस है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल सोचो, एक इंसान है, उसको पीस चाहिए, है ना? हमारे अंदर में ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, एंड एवरी सेल्स हैज ए डिस्टिंक्ट उसके पर्पस है और उसके एक्टिविटीज है, राइट? कुछ चीजें जो है वो बाकायदा हमको करना नहीं पड़ता है, वो प्रोसेस से काम करता है, तो हमारा वो सिस्टम बराबर चलता है, वो ऑर्गन बराबर चलता है। और कुछ चीजें है जो हमको करनी पड़ती है, अलाइनमेंट। कुछ चीजें ऑटोमेटेड अलाइनमेंट है हमारे बॉडी के अंदर में, वो अपने पर्पस कर रही है, तो उस जगह में ऑर्गन में वो पीस है, और उस जगह के लिए पीस है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे फैकल्टीज है हमारे, जो कि अलाइनमेंट करनी पड़ती है, तो वो अलाइनमेंट जब नहीं हो पाता है, तो हमारा कुछ हिस्सा में पीस नहीं होता है। तो ऑल टुगेदर अगर पीस थोड़े से भी हिस्से में नहीं है, तो पूरा सिस्टम ही हिल जाता है, राइट, है ना? तो उसी तरह से सोचो आप, तो हमारा जो बॉडी में सोचो ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, उसी तरह से अगर वर्ल्ड को हम कंपेयर करते हैं, तो वहां पर भी ट्रिलियन ऑफ लोग हैं, है ना? तो ये जो पूरा दुनिया है, दुनिया का एक मिनिएचर जो है ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, वो इंसान का बॉडी है। यस, जो पिंड सो ब्रह्मांड है, राइट? तो अगर हम अपने ब्रह्मांड को, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग इसको इनिशिएटिव ले रहे हैं,
तो उनके अंदर में पीस होना बहुत जरूरी है। पीस मतलब लिटरली जिसको पीस बोलते हैं, वननेस और पीस दोनों सेम है। मेरे नजर में दोनों कोई डिफरेंट वर्ड नहीं है। बिकॉज अगर वननेस रहेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर पीस है। अगर उसका मन और उसका दिमाग साथ में नहीं मिल पा रहा है तो दैट मीन्स देयर इज नो पीस। बिकॉज उन्हीं के बॉडी के अंदर में दो पार्ट्स डिफरेंट है और वहां पर पीस नहीं होगा। जैसे हम Yes, 5 लोगों का एक अलग व्यूज है। अलग व्यूज इसलिए है क्योंकि हमने उस एक ही कॉन्शियस लेवल में नहीं है। हर कोई अपने अपने कॉन्शियस लेवल में है और हर कोई अपने जगह पे सही है। इसमें कहीं गलत नहीं है, हर कोई अपने जगह में सही है। तो हमको ऐसा एक जगह में पहुंचना पड़ेगा जहां पर कि सबको वननेस दिखे, correct. तभी वो वननेस हो पाएगा, तभी हमारे अंदर वो विल पावर आ सकते हैं। Very correct. तो ये जो और जो श्रीनाथ जी बोल रहे थे टॉप से डाउन या डाउन से टॉप, ये दोनों में अंतर कुछ नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखें तो दोनों एक ही है। मुर्गी पहले कि अंडा पहले, आप इसका जवाब नहीं दे सकते। या कोई भी हर चीज का जो एंड होता है ना, वो टॉप से बॉटम होता है, बॉटम से टॉप होता है, ऐसा एक साथ में चलता है। इट इज साइमल्टेनियस वर्क, Very correct. है ना। तो साइमल्टेनियस वर्क में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं जस्ट एक अपना थॉट्स रख रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग वर्ल्ड का पीस करना चाह रहे हैं, तो हमने सोचा कि भाई चलो ठीक है, ये वर्ल्ड है, इसमें ट्रिलियन ऑफ लोग हैं, हर किसी का अपना अपना सोच है, अपना अपना पर्पस है, अपना अपना कॉन्शियस लेवल है। तो इसको कैसे करें, तो हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसमें लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और प्रॉपर उसी के तरह से ढांचा हमको बताना पड़ेगा। और वो ढांचा ऑलरेडी हमारे पास में है, जो हम खुद है। पूरा ब्रह्मांड का मिनिएचर एक मॉडल है, राइट। तो अगर हम अपने ऊपर में रिसर्च करते हैं तो एक ये हो गया कि ये हो गया जैसा कि श्रीनाथ जी के वर्ड से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मैंने एक एक आदमी को पीस ला रहे हैं, क्या वननेस ला रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक आदमी जो खुद ही करे पीस लेवल में, उसके बाद सेकंड लेवल जो जाए, वो सेकंड लेवल जैसा फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में अगर लेते हैं, क्योंकि आज के लेवल में राष्ट्र जो है 300-400 साल पुराना कंसेप्ट है। राष्ट्र बोल के कुछ था ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। ये राष्ट्र हमने ही बनाया, तो हमको ही मिटाना पड़ेगा। क्योंकि कोई डर अगर कॉन्शियस लेवल में, Very कोई correct. अगर डर हमारे कॉन्शियस लेवल में आता है तो हम खुद उसको क्रिएट करते हैं। तो वी आर द ओनली पर्सन हु कैन डिलीट दैट। Correct. मेरे Absolutely right. नेबर आके मेरे डर को नहीं छुड़ा सकता। मेरा डर मैं ही खुद क्रिएट किया हूं अनजाने में, अज्ञान लेवल में। तो मुझे अगर ज्ञान मिलता है तो मैं जाके जहां पर क्रिएट किया था वहीं पर उसको डिलीट करना पड़ता है, तभी जाके वो डर खत्म होता है। उसी तरह से राष्ट्र जो है, तो राष्ट्र भी हमने बनाया हुआ है। कुछ कॉन्शियस लोग उस टाइप के कॉन्शियसनेस में उन्होंने बनाया है, तो हमने उसी लेवल में जाके फिर राष्ट्र को भी डिलीट करना पड़ेगा। Wow. Excellent. है ना। तो यहाँ पर Absolutely क्या right. होता है, तो यहाँ पर अगर हमने इंडिविजुअल लेवल में पहले वर्क करना शुरू किया, एंड वंस विल अंडरस्टैंड कि ठीक है भाई, पीस का प्रोसेस हो रहा है एंड इट इज अचीवेबल, देन वी कैन थिंक अबाउट द राष्ट्र, देन वी कैन थिंक अबाउट द ग्लोबल। If we have not tried in our own body, then it is very difficult to discuss and find out a solution. इसमें क्या है कि हर कोई, मैं इसको, क्योंकि मुझे हर जगह में एक ही वर्ड दिखता है, दैट इज कॉल्ड SAI, साई। तो मैं यही बोलता हूँ कि सेल्फ एवर इंडिविजुअल चाहिए, जो कि वो खुद रिसर्च करके पीस और वननेस को अपने जीवन के अंदर में ढाल सके। फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड ये हुआ कि जो राष्ट्र का बात कर रहा था कि अगर सोचो हम ग्लोबल में जा रहे हैं, तो जैसे कि एक ब्रह्मांड का मिनिएचर है ह्यूमन बॉडी, उसी तरह से पूरा यूनिवर्स मतलब वर्ल्ड का, पृथ्वी जिसको हम बोल रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड का मिनिएचर इंडिया है। और ये भी ईश्वर ने, अभी जो भी पावर उसको बोलो, उसने बनाया है ऐसा। आज कोई दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो कि ये मॉडल जो इंडिया के पास में है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसमें हर तरह के लोग हैं, सोच है, विचारधारा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो श्रद्धा होती है, क्योंकि ये जो श्रद्धा होती है ना, ये बहुत डेंजर बात होती है। ये अच्छे में हो गया तो अच्छे श्रद्धा है, बुरी में हो गया तो बुरी, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई श्रद्धा तो है ही। और उसमें जो रिलीजन है, जो जिसको मतलब आज के जो रिलीजन में उसको गुड मानता हूँ, क्योंकि हर किसी ने अपने हिसाब से एक बना लिया है। तो ये जो श्रद्धा है ना, ये एक इस तरह से विश्वास बढ़ गया है उनके अंदर में, और ये दुनिया भर में ये सारे लोग उसी विश्वास वाले हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल है। अगर हमको दुनिया में एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले इंडिया में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, है ना। तो इसमें एक तो हो गया आपका इंडिविजुअल पर्सनल लेवल में डेवलपमेंट, और एक मुझे लगता है कि कम्युनिटी लेवल में, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मुर्गी अंडा, उसी से कम्युनिटी अच्छा होता है तो इंसान अच्छा बन जाता है, अगर इंसान अच्छा होता है तो कम्युनिटी अच्छा बन जाता है। वही इंडिया का आदमी अगर सिंगापुर जाता है
तो एयरपोर्ट से निकलते थूकता नहीं है, लेकिन वही आदमी जब इंडिया में आता है तो बाजू में थूक देता है। क्योंकि इट इज ए वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि जो कम्युनिटी है ना, जो हमारे अंदर के जो सेंसेस हैं, जो हम देखते हैं, जो चीजें करते हैं, वो डिफॉल्ट में कुछ अपने हिसाब से काम करते हैं। उसको हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये काम कैसे करते हैं, डिफॉल्ट में क्या होता है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, है ना। तो वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस समझने के बाद में मुझे लग रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ towards the oneness, towards the peace, and second level simultaneously also we can start working on the India level. और एक मिनट हमीद भाई, एक मिनट हमीद भाई। विश्वनाथ जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार विश्वनाथ जी। हाँ श्रीनाथ भाई, कंटिन्यू रखिए। हाँ। तो हमीद नमस्कार भाई, मैं थोड़ा लेट हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हमीद भाई जी, एक आपको मान के चलना पड़ेगा यहाँ पे। गांधी जी जी नमस्कार व्यास जी। अच्छे जी। हैं। या तो हमीद भाई मैं ये कह रहा कंटिन्यू था रखिए। कि आपको मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 6 लोग हैं अभी, हम हर एक ने अपने लेवल पे एक लेवल ऑफ पीस अटेन किया है, तभी हम साथ बैठे हैं। नहीं तो हम यहाँ पे मतलब आधा मिनट भी यहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे। तो एग्री नहीं, हाँ, तो शायद हम सेम लेवल ऑफ पीस ना अटेंड कर पाए हो, कोई ज्यादा हो कोई कम हो, बट एक बेसिक लेवल ऑफ पीस हमने इंडिविजुअल लेवल पे अटेंड किया है। अभी उसको कलेक्टिव पीस कैसे कन्वर्ट करना है, इस पे चर्चा है, राइट जी। तो इसमें तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका जो है, जैसा कि हमने अभी शुरू कर दिया है, जो 2 बार हमने मीटिंग किया, बातचीत किया, तो मुझे लग रहा है कि ये जो मतलब शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, जो थॉट्स हैं, ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ पीस अचीव करने के लिए, राइट। और सेकेंड चीज रहा, अगर हमको पैरेलली मतलब कम्युनिटी, मेरे नजर में कम्युनिटी वन कम्युनिटी है, दैट इज वर्ल्ड इज वन कम्युनिटी। तो अगर मैं कम्युनिटी वर्ड यूज करूँ तो आप पूरा वर्ल्ड को लीजिए, जब भी मैं कम्युनिटी वर्ड यूज करता हूँ। तो हाँ, तो कम्युनिटी जो है, अगर कम्युनिटी के लिए हमको काम करनी है, तो हमको उसको उस नजर से देखना है कि जैसे मैंने बोला कि वेरी प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच होना चाहिए, कि पूरा वर्ल्ड का आप सोचो, एक हमारे पास में मॉडल है, वो इंडिया है। इसमें सारे धर्म, आज अगर सबसे ज्यादा अशांति अगर आप देखो तो ये सारे मतलब जो श्रद्धा के जिस भी चीज पे श्रद्धा हो, उसके बेसिस के ऊपर ज्यादा कलहल चल रहा है ना। तो उसका तो एक बहुत अच्छा मॉडल हमारे पास इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसके साथ साथ बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, जो मैंने बोला कि राष्ट्रवाद, ये सारे चीजें, वो तो एक पार्ट ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट है उनके अंदर में जो एक असत्य के लिए सत्य का भावना है, वो बहुत गहरा असर करता है, वो इतना जल्दी निकलता नहीं है। और ये वर्ल्ड वाइड हर जगह में इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं पर, और उसमें आप भी ये मानते हो कि पॉलिटिकल जो पावर है वो अगर नहीं होता है तो, क्योंकि कोई भी चीज का अगर विधान, मतलब जब बोलते हैं ना कि विधान भी होना चाहिए, प्रधान भी होना चाहिए, है ना। तो अगर एक घर में अगर आपके लीडरशिप नहीं रहेगा तो घर नहीं रहने वाला है ना। तो वो भी चाहिए हमको। तो उसके लिए भी मुझे लग रहा है कि उस तरह के जो सेल्फ और इंडिविजुअल्स है, उन लोग उस लेवल में जाए, और वो लेवल का पहले तैयारी करें, इंडिया लेवल का, है ना। साथ साथ में ठीक है, आप विश्व के लिए कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पहले लेवल में इंडिया में आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जैसे कि हम अपने जीवन में पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अगर हमको बड़े लेवल में करना है, आप सोच रहे हैं, तो इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत सारे डाइवर्स चीजें हैं, और पूरा वर्ल्ड का एक मिनी छोटा सा मॉडल है, उसके ऊपर आप ये वर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको सोशल मॉडल, इकोनॉमी मॉडल, स्पिरिचुअल मॉडल, ये सारे मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। और काफी लोगों ने इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसा कि अपने भारत गांधी जी भी काफी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और सुधीर जी तो इंटरनेशनल लेवल में कर रहे हैं, दीपक भाई कर रहे हैं। तो ये सारे जो थॉट्स है, और भी काफी लोग हैं, तो इनके थॉट्स को सब मिला के उसको एक पहला इंपॉर्टेंस लिया जाए कि ठीक है, एक लेवल पहले इसको अचीव किया जाए। पहले हम हमीद भाई, यहाँ 6 लोगों में हम एक कॉमन कंसेंसस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर हम अचीव कर पाए इस मीटिंग में, अगले मीटिंग में, या 2-3 मीटिंग में, तब भी ठीक है। पर हमें 6 लोगों को एक कॉमन मॉडल पे आना बहुत जरूरी है, वरना हम कहाँ से कन्विंस कर पाएंगे दूसरों को। हम फिर से वही मॉडल, अभी जैसे 600 लोग काम कर रहे होंगे दुनिया में, और 600 मॉडल हैं कम से कम, 1000, अगर 700 नहीं है तो अलग बात है। तो 600 मॉडल कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ से साथ में आएंगे? तो ये 600 लोग जब तक साथ में नहीं आएंगे, कंसेंसस मॉडल नहीं बनेगा।
तब तक ये रियलिटी होगा ही नहीं। दीपक भाई का इसके लिए देखिए, इसके लिए वही है, इसका रास्ता वही है कि हमको एक दूसरे से खुल के बात करनी पड़ेगी। वेरी क्लियर है ना। हमको खुल के जो सोच है, जैसा कि इन्होंने दीपक भाई भी बता रहे थे ना, जैसा पीस का मैं क्या समझता हूँ, पीस अगर वर्किंग मॉडल में है ना, तो पीस का मेरा डेफिनेशन होता है पर्पजफुल ईगोलेस एक्शन विद कॉन्शियस एफर्ट। ये पर्पजफुल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर पर्पजफुल वर्क करता है, ईगोलेस वर्क करता है और विद कॉन्शियस एफर्ट, तो उसको पीस अचीव हो जाता है अपने आप। कहीं पर भी ये तीनों जो चीज मैंने बोला, पर्पज नहीं होगा, ईगो रहेगा और कॉन्शियसली एफर्ट नहीं होगा, तो उसमें पीस अचीव नहीं होता है। तो मैंने एक छोटा सा अपना डेफिनेशन बनाया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं है ना, तो डिस्कशंस को नेक्स्ट लेवल के लेके जाया जाए और खुल के बात किया जाए, और जो मेन कोर एजेंडा है, जो मेन चीज हम सोच रहे हैं, उसका हम लोग एक बनाए कि हाँ भाई हमको को क्या अचीव करना है। हमको पहले पर्सनल तो चलो सब लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल नेशनल करना है या ग्लोबल करना है, जो भी सब लोग बोले, उसको एक एजेंडा फाइनल करना है। फिर उसके बाद अपने अपने जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे सुधीर भाई ने भी पूरा ह्यूमनिस्ट मूवमेंट का पूरा डिटेल्स भेजा था, काफी अच्छा मॉडल है। विश्वात्मा जी का भी काफी साल का रिसर्च है, उनका भी काफी चीजों के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, बताए हुए हैं। तो ये सारे चीजों को हमको नेक्स्ट लेवल में डिस्कस करके फाइनल करना पड़ेगा, है ना जी। विपुल, आप लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि सबको साथ में आना जरूरी है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सबको साथ में आना जरूरी। आप जो 600-700 लोगों मतलब मॉडल्स की बात कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक अपनी तरह से काम करे और हर एक को एक अपना एक्सपेरिमेंट करने का मौका देना ही चाहिए। मतलब वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि दूसरे को मेरे मॉडल से चलना चाहिए या मुझे दूसरे के मॉडल से चलना चाहिए। Let everybody follow whatever model they want to follow. Like last time सुधीर जी ने बोला, हमारे तो 3 क्राइटेरिया है। एक है it has to be a non-violent way of working. Second है it has to be without discrimination. There should be no discrimination whatsoever. And third, the most important is that human being should be central value. तो वो मॉडल में ह्यूमन बीइंग को सेंट्रल रख के जो भी सही, जिसको भी सही, हम लोग उन लोग के साथ ही काम कर सकते हैं। जो वायलेंटली काम कर सकते हैं उनको साथ काम नहीं कर सकते, जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके साथ काम नहीं कर सकते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग छोड़ के दूसरे के ऊपर सेंट्रल वैल्यू रख के काम करना चाहते हैं, रुपया है या दूसरी कोई चीज या धर्म या जाति या कोई, तो हम लोग उनके साथ नहीं काम कर सकते। बाकी सब लोग काम करें ये दिशा में। और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं ही पूरा दुनिया को ह्यूमनाइज करूंगा। आप सब लोग उसकी डायरेक्शन में, एंड आई सी यू एज अ को ट्रैवलर। अगर अभी हमीद जी का जो एग्जांपल था कि बॉडी में 7 बिलियन सेल्स है, 7 बिलियन सेल्स है, सपोज नाउ सेल इन द आई इज डिफरेंट देन द सेल इन माय किडनी एंड डिफरेंट देन द सेल इन माय हार्ट, बट they are not opposed to each other. They in fact work in unison so that my whole body works. अगर वो एक दूसरे के विरोध में जाते हैं तो मेरा बॉडी खत्म हो जाता था, क्योंकि हार्ट बोलेगा मैं नहीं चलूंगा तेरे लिए, आंख बोलेगी मैं नहीं देखूंगी तेरे लिए, तो मैं चल भी नहीं सकूंगा और जी भी नहीं सकूंगा। सो लेट एवरीबडी वर्क इन देयर बेस्ट पॉसिबल वे। नाउ इफ यू आर सेइंग लेट अस क्रिएट, अकॉर्डिंग टू मी द मॉडल इज ऑलरेडी बीइंग इन implementation since 1969 when Silo started. People have started working, and today we are in more than 100 countries. So also our doctrine is doctrine based on human being, human consciousness. Our doctrine is based on how we can advance personally as well as socially. दुनिया को अच्छी बनावे, खुद को भी अच्छा बनावे। ऐसे there were models where लोग बोलते हैं कि खुद की ऐसी की तैसी, दुनिया को अच्छी बनाने, पूरी दुनिया वो पूरी जिंदगी घिस डालेंगे और खुद के बारे में नहीं सोचेंगे। इफ योर इंटरनल टर्मोइल्स आर नॉट क्लियर्ड, तो दुनिया अच्छी करने के लिए आप कितनी भी मेहनत करें वो कहीं ना कहीं उसकी असर होगी। सेम वे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं खुद के ऊपर ही काम करूं, दुनिया को छोड़ दो, तो भी नहीं होगा। खुद को और दुनिया के ऊपर साथ में काम करना पड़ेगा। हमारा ये विचार है। हाँ, अभी आप खुद को भूल जाओ। सपोज आप फैमिली वाले हैं,
सबका घर है, नौकरी है, धंधा है, कुछ भी है, खुद की रोजी रोटी कमाने के लिए आप कुछ ना कुछ करते हैं, वो करना ही चाहिए। पर जैसे देखो, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए स्कैफोल्डिंग बनाते हैं ना, पर वो स्कैफोल्डिंग दुनिया नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। स्कैफोल्डिंग इज मेड फॉर व्हाट? टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग इनसाइड। लोग रुपया कमाना लाइफ का महत्व समझ लेते हैं, उसके पीछे भागते हैं भागते हैं भागते हैं, फैमिली को भी नहीं देखते हैं और समाज को भी नहीं देखते हैं, वो भी गलत है। सो हमारे जो तरीका है, जो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट ने मुझे सिखाया है, जो मैं सीखा हूँ ह्यूमनिस्ट मूवमेंट से, उसमें हम लोग साइमल्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी, खुद को भी भूलते नहीं। तो हमारे पास पर्सनल वर्क के बहुत सारे मटेरियल्स हैं। ऐसा समझ रहा हूँ, देखो, डोंट फील बैड, मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर वी हैव ऑलरेडी इन्वेंटेड व्हील, नहीं रॉकेट। अभी आपको उसमें बैठना है कि वापस फिर से एबीसी से चालू करना है, वो आपके ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है 4 लोग मिलके, जिसको दुनिया का कुछ भी मालूम नहीं, डोंट फील बैड, आई एम बीइंग लिटिल हार्श, नो प्रॉब्लम। 4 लोगों को दुनिया का कुछ भी मालूम नहीं है, जो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट 1969 से काम कर रही है, उसके पर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के इतने टूल्स है, इतना मटेरियल है, दुनिया का एक व्यू है, दुनिया को कैसे बदलना है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं और आप अकेले नहीं, हजारों लाखों लोग दुनिया में मानव ह्यूमनिस्ट मूवमेंट की विचारधारा पे काम कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। जैसा दीपक भाई ने बोला कि पार्क बना रहे हैं, ऐसी जगह बना रहे हैं जहां जाके लोग उसके अपनी लाइफ के ऊपर काम कर सके। तो इसको इन्वेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और 4 लोग अगर एक छोटी सी रूम में बैठ के सोचे कि मैं दुनिया का, तो ओके, आपको स्टार्टिंग करना है तो करो, पर ये ऑलरेडी रॉकेट है, उसमें बैठ के उड़ना है तो आ जाओ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ आप ह्यूमनिस्ट मूवमेंट ज्वाइन करो, बट ह्यूमनिस्ट मूवमेंट के जो भी टूल्स है आपको अवेलेबल है, ह्यूमनिस्ट मूवमेंट की जो भी मटेरियल है आपको अवेलेबल है। silo.net करके एक अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप ह्यूमनाइज द अर्थ डाउनलोड करो, उसके ऊपर जाके आप लेटर टू माय फ्रेंड्स डाउनलोड करो, तो आपको आज की दुनिया का पर्सपेक्टिव मिलेगा। सॉरी सुधीर, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, आई वांट टू गिव मे बी विश्वात्मा जी अ चांस। सुधीर ने ऐसा हाथ किया तो मैं सोचा कि उसको कुछ बोलना है। When I get a turn. अच्छा, तो मुझे तो यही बोलना है, मुझे आई एम नॉट अपोज टू एनीबॉडी, हाँ, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। आई एम नॉट अपोज टू श्रीनाथ, आई एम नॉट अपोज टू दीपक व्यास, आई एम इन फैक्ट I am with everybody who is in the process of humanization, who is working to change, make a better world, who is working for making better human beings. I am with them, but I do not expect them to join me, or I do not expect them कि हम लोग साथ में मिलके करें। हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ वो भी साथ में ही है मेरे। दीपक भाई को मैं पराया मानता ही नहीं हूँ, दीपक भाई हमारे ही आदमी है, ऐसा मैं समझता हूँ। भले मेरी संस्था में हो कि नहीं हो, वो इज इमटेरियल, कनेक्टेड, ऑल कनेक्टेड, या हाँ, मैं उनके साथ उतना ही तार मिलाता हूँ जितना दूसरे किसी के साथ भी मिलाता हूँ, हमारे ह्यूमनिस्ट मेंबर्स के साथ मिलाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये आदमी मेरी डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, तो संस्था में होना नहीं होना वो उतनी रिलेवेंट नहीं। और जैसे सुधीर जी ने आगे भी बताया था कि वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट फोरम करके हमने वेबसाइट भी डेवलप की है, जिसमें ऑल लाइक माइंडेड पीपल कैन ज्वाइन एंड वी कैन ऑल, आई एम सेइंग वी शुड ऑल वर्क इन टुगेदर। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है ही, और हम लोग उसके ऊपर काम कर ही रहे हैं। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स आपको पता ही नहीं है क्या है, शायद, आई डोंट नो, आई मे बी। विश्वात्मा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा किसी काम में बिजी था। हाँ। लेकिन मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ, थोड़ी देर में बोलता हूँ। या सुधीर, गो अहेड। यू आर ऑन म्यूट, बाय द वे। Well, I heard most of what was spoken, except a little bit of glitch of signal in between. Right. So that's fine. Since I and Vipul share the same background of humanist movement, I would like to
make a cautionary note here that in any case, we have two different point of views as a possibility, and we could be presenting things from two different points of view. So I will not repeat what Vipul said, but I would like to mention one thing, that since here we are meeting people with different organized experiences, each one of us has got a different organized experience, which means we have a vision, we have a thought process, and we have a set of activities that we wish to do. None of us should judge anybody's activity as wrong or right, because that will set a wrong perspective and the group will disappear. At the same time, we should understand that we are not here fishing for more members and support for our respective organizations. Even that will not work. So when we say that I have the perfect method, you follow me, that is a clear prescription for closing the group. And vice versa. When we say that, no, your method is not good enough, you follow my method, that is a clear prescription for closing the group. Somebody may be right also, but that would not be the best way to convey what is right. Looking at all these, pulls and pushes that happen when people meet, inspired by what Silo said, I'm saying this particularly because that's how the historical facts are. As I said in last my talk, that in the humanist movement, we have foreseen many things that would happen, and formation of this group, or the attempt, or whatever we may call it, coming together of the people here, is one such thing that we have foreseen. It is not that we are great people, so we have foreseen. It is that it has been foreseen. We can go into its detail later on, how it was foreseen. Silo said that the world will become perfect in about 1,000 or 1,500 years without us doing anything. So that is one choice. We can wait for 1,000, 1,500 years and things will become fine. But then he said that we are not the people who are going to wait, because we also see Silo has done fantastic work on consciousness level, by the way, and that work is available to all. That this change of 1,000, 1,005 years can be brought in a few decades if we work now for it, because there are times when things are in a malleable condition. You take a piece of iron, you try to bend it, you cannot. But if that iron is in a melted position, you can give it the shape you want. So the consciousness is in that stage right now, and things can happen to bring a very rapid change in a few decades, which would otherwise take 1,000+ years. Right. Now, we have foreseen that many people will come forward to do these things. And actually, more than the people within the movement, because movement does not have 1 billion people in it. Movement is there in 150 countries, but in some places we have currently maybe 2 people, 5 people, 10 people, that's all. Because voluntary activities, you know how they go up and down. And especially when it is a pure voluntary activity where every time you come, you are spending your time, you are spending your own money, and nobody gives you that. Nobody compensates you for that. You come because of selfless reasons only. The only selfish motto you may have here is that I want the world to change. So we believed that if we have X number of people in the movement, X to the power X will come from outside the movement, who have not yet have the experience of the movement, and who would want to bring this change, and who would be prepared to do whatever is required to bring this change. And many of these people will follow somebody, and many of these people would have their own ways of doing it.
and both are fine. We have created a platform precisely for that situation where different organizations or differently minded people who think this is the right way, this is the right way, and there are n number of right ways, they can come together on one platform. They can share their ways with each other. Nobody forces anybody. Those who like to come together on a one campaign or more campaigns or whatever, it is up to them to decide how much they want to work together and how much they want to work separately. No hard feelings on that at all. Each one says, okay, I can contribute this, and it is lying here on, let's say we have a common dining room. So what I can contribute, I put on the table. Anybody who wants, he or she takes it. If they don't want, I don't care. I contribute my ways and I listen to others. This listening, so that it doesn't occupy each other's time too much, is done through the web, taking advantage of the web. Like, for example, we are in 6 different locations right now, and we are talking as if we are in the same room. We are listening to each other. We are looking at each other. We can see the feelings on the faces of each other. We can connect with that and all that. This is the technology that is possible. And this platform is called World Humanist Forum, which is further divided into 6 forums, one for Asia Pacific for geographical reasons, for coordination reasons, one for Asia Pacific, one for Africa, one for Europe, one for North America, one for South America, and finally they become World Humanist Forum. World Humanist Forum, let me tell you, is not an organization. It does not have a membership fees. Nobody adheres to anything other than 2 conditions. The organizations who will come here will believe in non-violence and no discrimination. That's all. You work for animals, you work for humans, you work for fishes, you work for no borders, you work for flowers, whatever is good for the humanity is fine, as long as you are non-violent and you are non-discriminatory. The point, my friends, is that today the time has come, which is the reason why we have come together, is to put our heads together, share whatever we can share, take whatever we can take from each other, and build a better world. I think the minimum thing we will all agree that the crisis has reached a point where it is destroying life all over the world. And we need to save our dear world for our next generation. Let's forget all philosophies and methods. Let's take a very practical view. We have a right to ask our parents what kind of world you gave us, and same way our children have right to ask us, what the hell have you given us? And we are responsible for that. Let's bring the change. Right. Whoever contributes, whatever contributes without saying I have the best. I just say, okay, I made this dish, I'm putting it on the table. Whoever likes it, they can taste it. If they like it, they can take it more. Otherwise, they can leave it. No hard feelings, no comments, no saying I'm the best or you are the best or he's the, nothing. We just contribute to common dinner, common food, what we bring on the table, and we take things forward from there. Right. So I welcome all of you to the World Humanist Forum, where such discussions are happening with many more people. Right. And by coming to World Humanist Forum, you're not joining an organization. You're not leaving your organization. You're not merging with anybody else. You're only coming to a common discussion table, just like we are here. That's all. Yes, Sudhir, we need to now move to the next level beyond discussion. We need to come up with a practical, implementable model. So that is what we are trying to achieve here. I feel that we should not discuss the models in the beginning. That is why, because if we keep discussing the models, we will challenge each other's models. See, just like Vipul was doing right now. We have discovered this, we have found, okay, he's emotionally telling you his best, but this could be taken by anybody that this guy has a big ego. He's telling he's got the best, and what the fuck are we doing? We don't know anything? No. That's an emotional thing that he's telling you. Let's not discuss the model. Let us share the models. Yeah. Let us agree on a common thing, I would say. Do we agree that there is crisis in the world? Yeah. Do we agree that we need to do something about it? Do we agree that the action we need to do should be non-discriminatory even against the killers
and non-violent even against the killers. Let's say we identify 20 Hitlers in the world today. Do we want to kill them? No. We will transform them also. Right. Because let's not forget that in our whatever reasoning or lack of reasoning, we have given them this place. Right. It's not that somebody has come to my home and put a knife or a gun on my head and say, vote for me, or allow me to rape some woman, or allow me to swindle some money, or allow me to screw the whole society. No, we have. That's why one of the slogan we did in a campaign, we said, India can be different if we are indifferent. If we are not indifferent, sorry. Because we are indifferent, some people are taking the world and the country and the society for a ride. So Right. let's come together, which is we are here together. Let's agree there is crisis. We need to do something. What we need to do, let that be a process that will continue over a period of time, learning from each other. We bring on table, look, I'm doing this, you are welcome. I'm doing this, you're welcome. So there are tens of suggestions and invitations, and we join there, we go there, we look at each other, we help each other, we will grow. Let's not, otherwise we will fish for two things. One, let my idea be identified as the best. So let us discuss the model. Now I will challenge everybody, my model is the best. No, Sudhir, that is not the, Second, that is clear, we are not into that model. I'm just saying precautionary. Second, we are not into that. Second, just like all of you, I have an organization. So let me get everybody into my organization. No need. Follow my organization, right? No need at all. No. That is not the, clearly not the. This is what I want to say. Yeah, विश्वात्मा जी, आपने बहुत स्टडी किया है इसके बारे में, बताइए। हाँ, देखिए भाई श्रीनाथ जी, पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा विलम्ब हो गया था। मैं ऑफिस में था और सही बात यह है कि मेरे माइंड से उतर भी गया था। मेरे को लगता है फ्यूचर में ऐसा हो तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि एक कॉल भी लोगों को देना चाहिए कि फोन पर भी, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन मैं ऑफिस में बहुत लोगों के साथ था तो दिमाग से बिल्कुल उतर गया था। ये तो मैंने संजोग बस मोबाइल जब घर आया तो मोबाइल देखा तो उसमें देखा कि अरे ये तो टाइम हो गई है मीटिंग के, तो मैं ज्वाइन कर लिया। इस बारे में दरअसल हम तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि दरअसल जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो वर्टिकली क्लासिफाइड है, और ये जो जिसमें एक क्लास वो है जो ग्लोबली थिंक करती है। मेरे हिसाब से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से ये पॉपुलेशन में सबसे कम परसेंटेज, लेकिन जितना इनका परसेंटेज कम है उतने ही ज्यादा इनकी एक्सेप्टेबिलिटी परसेंटेज में ज्यादा है। तो ये इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, इनका इन्फ्लुएंस, इनकी जो पॉपुलेशन में परसेंटेज है, इनको जोड़ दिया जाए तो ये कांस्टेंट है। अब इस मामले में जो केवल गांव की सोचता है, जो केवल अपने स्टेट की सोचता है, जो अपने कंट्री की सोचता है, ये सबको मिला दिया जाए तो सबके दोनों फैक्टर्स को जोड़ें तो ये कांस्टेंट है, सबके लिए कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई वीक हैं या कमजोर हैं और हमारी बातें सुनी नहीं जाती। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम बहुत इंटेलिजेंट लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को ही पहले कन्विंस करें, और बहुत लोग इसमें कैपेबल भी होते हैं, कर भी लेते हैं। हमारे मुकुल भाई अभी बोल रहे थे और सुधीर जी बोल रहे थे, ये लोग कर भी लेते हैं। हमने थोड़ा सा बहुत दिनों पहले एक दिमाग में बात आई कि हम केवल आम आदमी को, जो इलिटरेट क्लास है जिसको वोट बैंक कहा जाता है, हम उसको ग्लोबल गवर्नेंस या ग्लोबल जो व्यू पॉइंट है वो इंजेक्ट करें और उसका मोडस ऑपरेंडी क्या। तो वो एक्सपेरिमेंट हमने किया। पहले तो हमने इस पर बुक्स लिखी और बुक्स लिखने के बाद फिर हमने एक ट्रेनिंग कैप्सूल बनाई, और वो ट्रेनिंग कैप्सूल जब हमने लोगों के सामने रखा तो हमारी भाषा थोड़ी अलग ढंग की होती है। तो मैंने देखा कि जो बड़े लोकल थिंकर्स हैं, बहुत गांव की सोचते हैं, अपने परिवार की सोचते हैं, अपनी बीवी बच्चों की सोचते हैं, यहां तक कि गांव के बारे में भी नहीं सोचते। अगर उनको सही भाषा दिया जाए तो वो ग्लोबली थिंक करें या ना करें,
उनमें ग्लोबल ब्रदरहुड पैदा हो या ना हो, लेकिन ग्लोबल गवर्नेंस की जो बेनिफिट्स हैं उनके प्रति वो अटैच हो जाते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ग्लोबल गवर्नेंस की आम आदमी को क्या बेनिफिट है, हमारे जो एम्फेसिस इस बात पर, इस एंगल पर होना चाहिए। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि दुनिया में चेंज 3 तरीके से होता है। पहला तरीका तो यह है जो कारपोरेट अपनाता है कि जो रूलर्स हैं उनको खरीद लेता है, वो कहते हैं आप कितने पैसे में बिकोगे बताओ, और हम पैसे देने को तैयार हैं। जैसे कि गेट ट्रीटी हुआ और WTO का जो एग्जिस्टेंस हुआ वो पॉलिटिशियंस को खरीद कर हुआ। दुनिया में ऐसा नहीं है कि वो बड़े इंटेलिजेंट हो गए थे, इतना इनलाइटेंड हो गए थे कि ग्लोबल मार्केट और वर्ल्ड मार्केट क्रिएट कर दें, ऐसा नहीं था, लेकिन खरीद लिया गया। दूसरा तरीका होता है वायलेंस, कि हम इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट तरीके से काम करेंगे कि आप हमारी बात मानने के लिए विवश हो जाओ। और तीसरा तरीका जिस पर हम लोग शायद यहाँ पर जितने भी 5-6 लोग हैं सब एग्री हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें और उनको मोटिवेशन के थ्रू उनको इस तरफ ले आए। तो ये जो तीसरा तरीका है, अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो इसमें केवल समझदार लोगों को और बड़े बड़े लोगों को समझाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आम जनता जो मूक है, जिसको बोलना नहीं आता, लेकिन वही कंट्री का भविष्य तय करता है अपनी वोट बैंक के थ्रू। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हम वोट बैंक मोबिलाइज कर सकते हैं ग्लोबल गवर्नेंस के डायरेक्शन में। हमने देखा कि इसमें हम बहुत कामयाब हुए। आज लगभग 40 लाख लोग हमसे अटैच्ड हैं और सभी जय जगत बोलते हैं, जय वोटरशिप बोलते हैं और बनेगी धरती की सरकार एक दिन के गीत गाते हैं, और हमारे हर रैली में नारे लगाए जाते हैं। एक हमारा कोड वर्ड है, जो दुनिया के वेल विशर्स हैं, सबको अच्छा सोचते हैं, उनका कोड वर्ड दिया है ओ मेंटेलिटी। ओ मेंटेलिटी और AB मेंटेलिटी, ये 2 ब्लड ग्रुप के बेसिस पर डिवाइड किया है। तो ओ मेंटेलिटी, पाकिस्तान के वो जिंदाबाद, अमेरिका के वो जिंदाबाद, अफ्रीका के वो जिंदाबाद, ऑस्ट्रेलिया के वो जिंदाबाद, इंडिया के वो जिंदाबाद। एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी हमारी है जहां अमेरिका के लोगों का, जापान के लोगों का, यूरोप के लोगों का, सबका जिंदाबाद बोला जाता है। और थोड़ी मात्रा में नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में है, मिलियंस, मोर देन मिलियंस में। तो मेरे को एक बात तो लगता है कि हमें आम आदमी को भी कुछ टेक्निक ढूंढनी चाहिए। एक टेक्निक हमने डेवलप किया है और अगर उसका फायदा और लोग उठा सके तो उठाना चाहिए, नहीं तो अपने ढंग के अपनी टेक्निक डेवलप करनी चाहिए। ये तो हुआ नंबर 1। और नंबर 2 बात ये है कि अभी मुकुल भाई बात बोल रहे थे कि विपुल भाई बोल रहे थे कि जो हमारी बॉडी है उसमें मिलियंस बल्कि ट्रिलियन सेल्स हैं। तो हमारी बॉडी अपने आप एक मॉडल है। विश्वात्मा इज अ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट 20 ट्रिलियंस। तो ये एक मॉडल है जो हम मेडिकल साइंस की फिजियोलॉजी की स्टडी करके और जेनेटिक्स और साइटोलॉजी की स्टडी करके एक नया मॉडल डेवलप कर सकते हैं। वो कोई वाद नहीं होगा, वो शरीरवाद होगा, और इस शरीरवाद के आधार पर वो मॉडल डेवलप हो सकता है। इस पर वाइडर कंसेंसस बन सकता है। जो आज 600 मॉडल की बात हो रही थी कि उस पर कंसेंसस नहीं बनता। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ, ये अमेरिकन और बहुत सारे हमारे व्यास भाई जुड़े हुए हैं उससे, हमने उसकी स्टडी की है। लेकिन मैंने उसमें एक चीज पाया कि इस पर आम आदमी के कुछ समझ में नहीं आएगा, आम आदमी को कोई इससे बेनिफिट समझ में नहीं आता। तो इसलिए वो मॉडल अच्छा है, उस पर होमवर्क बहुत हुआ है, बड़ा परिश्रम किया है जी उन लोगों ने, खास करके हमारे यूएस के बहुत लोग हैं, मार्टिन भाई लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी को कोई इंस्टेंट वैसी चीज नहीं देता कि आम आदमी अटैच हो जाए और इसके लिए कोई वोट बैंक बन जाए। वो उसमें फेल्योर हो जाता है। इसीलिए शायद वो दुनिया में इतना आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि ये डॉक्यूमेंट आज के 40-50 ईयर्स पहले तैयार हो गया था और 50 ईयर्स से इस पर काम चल रहा है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी।
और तीसरी बात यह है कि हमें इस बारे में भी सोचनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच मैं सोचता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर फंड्स की जरूरत है, और वो हम सोचते हैं कि कोई हमें फंडिंग एजेंसी दे देगी और कोई ट्रस्ट दे देगा ऐसा, और हम कोई करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ में कोई काम कर लेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को लगता है 2-4 लाख करोड़ रुपए चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इस पर कंसेंसस बने और दुनिया में कुछ ऐसा हो। तो अब 2-4 लाख करोड़ रुपए के लिए हमें कन्वेंशनल वे में नहीं सोचना पड़ेगा, कुछ नॉन कन्वेंशनल वे में सोचना पड़ेगा। इस पर हम लोगों ने काम किया है और बहुत सारी फंडिंग हमें जनरेट होती है उस नॉन कन्वेंशनल वे में। कभी स्टडी करना चाहेंगे तो हम उसको बताएंगे। और मैंने तो क्या हुआ कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तो मेरा तो नाम दुनिया में भरत गांधी के नाम से बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन मैंने 50 इयर्स का जब हुआ तो मैंने अपना नाम विश्वात्मा रख लिया। तो हमने कहा कि भाई आपके हर कंडक्ट से, आपके हर बिहेवियर से, आपके हर चीज से, इवन आपसे लगना चाहिए कि आप किसी नैरो बाउंड्री से में कन्फाइंड नहीं हो, बल्कि ग्लोबल हो। तो हमने नाम ही विश्वात्मा रख लिया। बड़ी आलोचना भी हुई है, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जो बात सही है वो कहनी चाहिए और घुंघरू बांध के नाचना चाहिए। तीसरी बात, हमने एक वोटर्स पार्टी के नाम से पार्टी रजिस्टर कराई इलेक्शन कमीशन में, उसमें इंटरनेशनल शब्द आया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरे को 4 साल परेशान किया कि हम आपकी पार्टी रजिस्टर नहीं करेंगे, इंटरनेशनल शब्द हटाइए। और मैं उनसे लगातार लड़ा, और लड़ने के बाद हमने इंटरनेशनल शब्द रजिस्टर कराया, और हमने उनको पूरी बात, जो एक ग्लोबल गवर्नेंस के जितने फायदे होते हैं, ये जितने ट्रेनिंग के कंटेंट हैं, वो सारा इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को, यहां तक कि उनके हायर जो कमिश्नर लेवल के लोग हैं, उनको समझाया, और अंत में वो लोग माने कि वास्तव में ग्लोबल गवर्नेंस की जरूरत है, जबकि पहले उनके माइंड में बात नहीं थी। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रस्ट रजिस्टर कराया मिशन फॉर ग्लोबल चेंज के नाम से, उसने भी ग्लोबल शब्द रखा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने बहुत सारा झगड़ा किया हमसे कि साहब हम इसके लिए 80G नहीं देंगे, लेकिन अंत में हमने लड़ झगड़ करके 80G दिलवाया, और उनको यह समझाया कि दुनिया में चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, करप्शन हो, टेररिज्म हो, हेल्थ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जिसके लिए इंडियन स्टेट काम कर रहा है, उसमें एक भी प्रॉब्लम कंट्री लेवल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। और ये ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल एफर्ट जब तक नहीं होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक को प्रॉमिस कर रही हैं, एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं हो सकता। ये वैसे ही बातें हैं जैसे कोई वीडियो कमिश्नर का ट्रांसफर कर देगा। तो वीडियो कमिश्नर का ट्रांसफर न कभी कर पाया, न कर रहा है, न भविष्य में करेगा। ये जुरिस्डिक्शन के मामले हैं। कुछ जो इंटरनेशनल या ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन या ग्लोबल गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है। ये बात वास्तव में बड़े बड़े लोगों को पता भी नहीं है। मीडिया इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता कि इस पर वोट बैंक मोबिलाइज नहीं होता और बहुत बड़े पैमाने पर फंड मोबिलाइज नहीं होता। अगर हम वोट बैंक मोबिलाइज करने और फंड मोबिलाइज करने के डायरेक्शन में सोचें और काम करें, तो ये एक बड़ा इशू बन सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये जितना स्लो काम दुनिया में अब तक हुआ है, भविष्य में भी इतना स्लो रहेगा। मैं तो बहुत होपफुल हूं कि हमारी जो टाइम है हमें हेल्प कर रहा है, टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है, और जरूरतें आज लोग महसूस करने लगे हैं। आज डीजल महंगा होता है तो जानते हैं कि मेरे देश के कारण नहीं, दूसरे देश के कारण हो रहा है। तो प्रॉब्लम्स जो स्टेट के द्वारा सॉल्व की जानी है, वो सारी ग्लोबल स्टेट से ही हल हो सकती हैं। तो मेरे को लगता है कि हमें होपफुल रहना चाहिए। और एक बात अंत में, दोनों बात कहूंगा कि हमारे विपुल भाई बोल रहे थे कि जरूरी नहीं हम लोग मिलके काम करें। ये भी एक मॉडल है काम करने का, क्योंकि सोचने की दुनिया में अगर एक भी आदमी हमारा साथी है तो हम बहुत गहराई में उतर नहीं पाएंगे। सोचने के लिए तो हमें नितांत अकेले होना चाहिए, लेकिन करने के मामले में हम मिलके ही कर सकते हैं। एक्शन हमें ज्वाइंट वेंचर मांगता है, और थिंकिंग, डिस्कवरी, इन्वेंशन हमें एलोननेस की डिमांड करता है। इसलिए मेरे हिसाब से जो सोचने के फेज में हैं वो अकेले काम करें,
और जो करने के फेज में हैं वो सब मिल करके कोई मॉडस ऑपरेंडी डेवलप करें कि वो मिलके काम किया जा सके। हमने अपने तरीके से डेवलप किया है, फिर कभी बैठक होगी, कभी चर्चा होगी तो उस बारे में हम डिटेल बताएंगे। आज अभी हम इतनी ही बात करना चाहते हैं। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, मैंने ऐसा करता ही नहीं कहा कि हमको साथ में मिलके काम नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि हम साथ में ही है, जो भी है। मैं किसी को ऐसा, मैं जो भी ये दुनिया के परिवर्तन के लिए, दुनिया को इकट्ठा करने के लिए काम करता है, मैं ऐसा वेट नहीं कर सकता कि ये 700 लोग या 7,000 लोग या 7 लाख लोग इकट्ठे हो तभी काम होगा। मैं चालू कर दूंगा, जो साथ में जुड़े, जो नई भी, मुझे कितने लोगों के बारे में पता भी नहीं है जो दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं। मैं समझता हूँ ये सब मेरे ही लोग हैं, मैं उनसे अपने आप को अलग समझता नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए वेट नहीं करूंगा कि मैं सबको इकट्ठा करूँ तो ही काम हो सकेगा। हमारे पास प्लेटफॉर्म है, वहां पे जैसे सुधीर जी ने बताया कि ह्यूमनिस्ट फोरम है, सब वो प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, नहीं आए तो भी वो हमारी दिशा में ही काम कर रहे हैं, तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा मत समझो, मैं दूसरे को मेरे विरोध में नहीं समझता हूँ, मैं सबको अपने साथ ही समझता हूँ। मैं आप सब लोगों को भी मेरा साथी ही समझ रहा हूँ, तो जो ये दिशा में काम कर रहे हैं उसको मैं अलग नहीं समझ रहा हूँ। मैं खाली उत्तर कहना चाहता था। नहीं, विपुल भाई इज वेरी करेक्ट। मैं थोड़ा इस चीज का एक गलत ताजा फहमी हो गई समझने में। हेलो हेलो Sudhir? hear me? Yeah, now we can hear. Yeah. So जय जगत संस्था के 3 लोगों ने पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाया कि हम वहां जाएंगे, लोगों को मिलेंगे और शांति की बात करेंगे। हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन आई, हमने उनको नहीं बोला कि आप ह्यूमनिस्ट मूवमेंट ज्वाइन करिए या फोरम ज्वाइन करिए। हमने उनको तुरंत पाकिस्तान में हमारे जितने कांटेक्ट हैं, ह्यूमनिस्ट मूवमेंट के पर्सनल कांटेक्ट हैं, सबके साथ कनेक्ट करा दिया। यात्रा बहुत बड़ी आई, बहुत बढ़िया हुई। उसका जो पहला शेयरिंग आया है मैं आपके साथ इस ग्रुप में शेयर करूंगा। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट तो फॉर एग्जांपल उसकी मेंबरशिप है ही नहीं। आप कहेंगे मैं ह्यूमनिस्ट मूवमेंट का हिस्सा हूं, आप हैं। आप कहेंगे मैं नहीं हूं या चुप रहेंगे, नहीं है, दैट्स ऑल। उसमें कोई मेंबरशिप नहीं है। हम किसी को मेंबर बनाने के लिए बुलाते नहीं है, हम बताते हैं, जिसको पसंद आता है वो ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ हमें, मेरे ख्याल में, ये मुद्दा बंद कर देना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल में हमारा ये मुद्दा है कि दुनिया बहुत बड़े क्राइसिस में है और हम सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है कि हमें इस दुनिया को बचाना है। मैं तो कहूंगा मेरा तो कम से कम ये सेल्फिश इंटरेस्ट है, ये दुनिया को बचाना है। और उसके लिए हम जो भी काम कर सके इकट्ठे, जैसे तरीके से कर सके उतना करें, बाकी हम अलग अलग करते रहें। दिशा तो हमारी एक ही है, हमारी डेस्टिनेशन भी एक ही है कि अच्छी दुनिया हो, बेटर दुनिया हो। और जब हम नॉन वायलेंस और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। काम करने के तरीके के डिफरेंसेस शुड बी देयर, दैट इज फाइन। इसका मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आपके पास एक 5,000 स्क्वायर फुट का गार्डन है और उसमें गुलाब लगे हुए हैं, लेकिन सारे गुलाब लाल रंग के लगे हुए हैं। और एक दूसरा गार्डन है जिसमें चाहे वो 5,000 के बजाय 500 स्क्वायर फुट का गार्डन है, लेकिन उसमें 400 तरह के फूल लगे हुए अलग अलग रंग के। आप खुद डिसाइड करिए कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो let the 1,000 flowers bloom, let us move towards a better world. That is the only call I would like to make here. And let's work the way we want to work, contributing to each other, telling each other, oh, you know, I'm doing this. Okay. मैं अगर आपकी किसी की बात से एग्री भी नहीं करूंगा तो मुझे ये सोच मिली है कि मैं उस व्यू का ध्यान रखूंगा कि वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। और मुझे कोई हक नहीं है ये कहने का कि मेरा तरीका बेस्ट है। सर्टेनली नॉट, क्योंकि वो एक तरीका है,
वो एक फूल है उस बगिया का, और उस बगिया में जितने फूल होंगे, जितने अलग अलग तरह के होंगे, वो उतना अच्छा लगेगी, और काम करते समय हमें उतना अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो ज्यादा शक्ति से आगे बढ़ेंगे। तो मतलब पता नहीं, मैं वायर्ड वैसे हूँ कि हम एक दूसरे का बेस्ट एस्पेक्ट्स लेके क्या हम काम कर सकते हैं, क्योंकि अपना अपना मॉडल तो चल ही रहा है। वो ऑब्वियसली होगा जब हम इकट्ठे इस तरह से शेयर करके काम करेंगे, तो ऑब्वियसली देखिए श्रीनाथ जी, आप कोई चीज ऐसी करेंगे जो मेरे से बेहतर होगी, मैं चुपचाप उसे अडॉप्ट कर लूंगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा तरीका बेटर है, मैं नहीं, चुपचाप बेहतर उसे होना अडॉप्ट कर जरूरी लूंगा। नहीं है, बेहतर होना जरूरी नहीं एक है। बात है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हमें एक जगह जाके 100 नए लोगों से जुड़ना है। आप गए, आपने 2 घंटे में 150 लोग आ गए आपके साथ। मैं 1 हफ्ता स्ट्रगल करता रहा, यार कोई सुनता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। मैं अपने आप देखूंगा, भाई श्रीनाथ क्या कर रहा है जरा देखो ना। हो सकता है मैं दरवाजा खोल के चोरी से सुनूं, कोई बात नहीं, सुनने दीजिए ना। हो सकता है मैं आके पूछ लूं, भाई मुझे भी तरीका बताओ। Whatever, सबका अपना अपना स्टाइल है। Let's not get stuck in style. This is why Vipul was making a very emotionally passionate appeal that he has found something great in the movement and he's telling you about it. Same way, let everybody tell, but let's not put our time here for that. So let's agree that we have different methods. We respect everybody's method. We don't have to qualify in a grading that this is best, then number 1, number 2, number 3, nothing at all. These are 1,000 different methods, million different methods. They are fine. Let us move together. If again I will repeat, I'm sorry, if we agree that there is crisis and this crisis is killing the world and we need to do something against it, and what we need to do should be without discrimination and without violence. If these are common concepts, I think we have made a great progress in 2 meetings. So can we agree that the final destination of perhaps global oneness is what is Deepak Bhai's favorite topic, which is some kind of a global parliament? Can we agree on this concept? I will say that is a very interesting possibility. Very interesting possibility. Because I think even the UN is an attempt to get all the nations to work in cohesion, but my view is that the UN seems to be a kind of a failure. Otherwise, UN was always a tool created by those 4 or 5 nations and exactly. their money fellows, whom you call today neoliberals, to keep the world under control. Right. Every 5 years they come with a new aim of these SDGs and to keep people कि यार तुमको ये मिलेगा, देखो अगर हम 20 साल में दे देंगे, 50 साल में दे देंगे, उनको वो दिखाते रहो और बंदर की तरह नचाते रहो और अपनी दुनिया को तोड़ते रहो. But in the name, at least, that is what we want to achieve. United Nations, the name is great. That we want to ultimately achieve. नाम तो कुछ भी रख लो यार, नाम से क्या फर्क पड़ता है दुनिया में. I'm saying maybe. I want to tell you one thing about the future economy. Artificial intelligence आज इस लेवल पे पहुंच गई थी, just 2 minutes, इस लेवल पे पहुंच गई है कि आपको एक गाड़ी बनाने के कारखाने में जो 1 लाख लोग एम्प्लॉय करने पड़ते थे, वो काम केवल 4,000 लोगों से हो सकता है, 4%, और पहले से ज्यादा बढ़िया हो सकता है. गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं कुछ टूल चेक कर रहा था, इसमें फोन आया मेरे को, तेरी नानी मर गई. मैं अपसेट हो गया, वहां रीडिंग गई, वो प्रोडक्शन गई तेल लेने. यहाँ कुछ नहीं, रोबोटिक्स, ऑटोमेटिक्स, एवरीथिंग ये आ गया है. अगर हम आज की इकोनॉमिक पॉलिसी से चलेंगे तो 96% लोग विल बी हंग्री एंड स्लेव and the 4% will be slaves. So we have to change the world to a totally different thing. So we don't know whether political parties will still be there in the future. We don't know whether governments will be there. We don't know what kind of unity world will happen, but we know that behind the idea of what Deepak Bhai explains of world parliament and all this is a united world. Correct. So that's what I'm saying. Who knows
that, for example, the consciousness will grow to a level where we will become self-governed. Absolutely right. We will not need any parliament. Who knows? I mean, just a fiction, okay, fiction, science fiction. No, it is absolutely the thing world going is to happen united because of technology. and everything works perfectly fine. Nobody owns anything. Everybody gets what they want. Why not? It's possible today. No, so we have to go step by step. I mean, that may be Yes. the highest level of evolution of human. It's achievable in 10 years, my dear. This is achievable in 10 years across. No, but let's go in not be steps. too optimistic. Yeah. Let's go in steps. So I'm saying Realistic. if we establish some form of a global governing organization, I think that should be the end goal. Can we agree on that? I mean, that should be not the end goal, but one of the goals to unite the world. If 500 conscious individuals were to kind of form a global government, can they together work towards global oneness and peace? That is the question. It's an interesting attempt, and I don't mind being a part of it as long as it is based on non-violence and no discrimination. Yeah, I mean, these things we should take for granted that everybody here is first of all non-violent. So no problem. Non-discriminating. It is So implied. It is what implied. kind Yes. of support you want from me, for example? So I'll give you a precise answer. So, I mean, I'm with you. जैसे हमने बोला कि हर चीज का एक माइक्रोकॉस्म होना चाहिए. अगर 500 लोगों का ग्लोबल गवर्नमेंट इज द फाइनल गोल, तो क्या हम 6 लोग उसका एक मिनिएचर मॉडल बन सकते हैं? तो क्या हम अपने लेवल पे एक ग्लोबल गवर्नमेंट का छोटा सा मॉडल बन सकते हैं कि नहीं? तो आप ऐसा करिए, आप इस आइडिया को एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, मतलब I don't mean a PowerPoint presentation, it can be just a talking presentation, अगली मीटिंग के लिए रखिए, और अगर वो जिसको वर्केबल लगता है वो उसमें ज्वाइन करेगा, जिसको नहीं लगेगा वो साइड से देखेगा, डजंट मैटर. व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं तो उस प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे एक कंसेंसस होगा तो उस प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा काम किया जा सकता है. अगर वो आइडिया ही यहाँ पे मतलब अनवर्केबल लगता है तो देन वी विल हैव टू थिंक ऑफ अनदर मॉडल. Srinath, I think we have to be a little crazy in the sense, let's not wait for confirmation of everybody to present our ideas. Let's present our ideas. Those who take it, they take it. Those who don't take it, they don't take it. They may take it tomorrow. What is the problem? And each one continues working on his ideas. Because let's not fish for followers here. No, it's not a question of followers. The problem is this is a subtle difference, Srinath. No. What I'm saying is we have observed so many individuals having worked for so long and still they have not achieved what they sought out to achieve. So which means clearly we need a different approach. And that approach has to be of arriving at a consensus. I'm sorry. This kind of discussion will kill the group. No. Because by this, somebody will take it like this, that you are saying that everybody's idea is bullshit. It has failed because it has not changed. Hold on. That it has not changed the world. So I am coming with a better idea. No need to say that, Srinath. Not I. We. Srinath, just present your idea. Just present your idea, and that's it. Let it sink into everybody's heart quietly. Let it sink. Yeah. Just like Vipul or me, we are not telling you, if you are interested in further discussion, join the humanist movement. No. We have told you in different ways what is humanist movement, and everybody is welcome, but the idea of explaining is not to say leave everything and join us. That's your decision. So let that be everybody's decision. You make your presentation that this is what I feel. You know, that this is what I feel is an idea to work at. And you show your work, you continue your work on that. People will come with you. What is there? Who knows, these 5 people other than you are dumb. Somebody else will come. Why worry about it? Don't worry. Make your presentation. That's all. Yeah. Sorry, Deepak bhai, I took more time. You wanted to say something. No. Please carry on. It's very interesting talk.
आपका हाथ रेज्ड है इसलिए। हाँ नहीं, इसलिए when we were talking about United Nations, I wanted to say that why to think negatively that United Nations is failing. Let us think it this way, that it is only through United Nations that we understood that the global nations can be brought under one umbrella. Right. Whatever level of achievement they have, but they have achieved, and we have to remember United Nations. That is the success. We will have better world. We will have united world tomorrow. Let us be optimistic. Why to see negation? Exactly. Yeah. So I think हमें ये मानना चाहिए कि हम यहाँ पे सारे एक लेवल ऑफ इवॉल्व्ड सिटीजन्स हैं, सारे अपने अपने लेवल पे, मे बी नॉट द सेम वे, नॉट द सेम लेवल, बट सारे इवॉल्व सिटीजन्स हैं। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो अभी हम साथ मिलके कैसे चलें और थोड़ी तेज गति से चलें, क्योंकि धीरे धीरे तो सब कुछ होगा ही। जैसे सिलो ने बताया शायद कि 1000 साल में होगा, 1000 साल में होगा, ठीक है, पर क्या हम उसे 10 साल में कर सकते हैं? क्या हम उसे 2024 में उसका फर्स्ट स्टेप रख सकते हैं ताकि 2030 तक वो रियलिटी बन जाए? यही तो प्रिसाइसली होगा, क्यों नहीं होगा? पॉसिबल है। हाँ, होगा ही। बहुत बड़ी तो पॉसिबिलिटी इसलिए है। तेज गति में चलने के लिए हमें हर मीटिंग में अगर हम कुछ कंक्लूजन्स, कुछ स्टेप्स पे हम काम, मतलब कंक्लूजन करेंगे तो हम अगले मीटिंग में आगे जाएंगे, वरना हम ये डिस्कशन में उलझे। आप अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, फिर वहां से हम लोग डिसीजन लेते हैं, क्योंकि सबने अपना अपना आइडिया एक्सप्लेन कर दिया, आपने शायद नहीं किया है। हमिद भाई जी म्यूट में, हाँ बोलिए। मैं पूरा एग्री हूँ सुधीर भाई से और विश्वत्मा जी से, विपुल भाई से। देखिए क्या है ना, हर चीज का, जैसा कबीर जी का एक दोहा है, आपने सुना होगा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़े ऋतु हाय फल होए, है ना। तो क्या हो जाता है कि सारे लोग अपने अपने जगह में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ चीज, जैसा कि विश्वत्मा जी ने जो बोला ना कि शरीरवाद, वो बहुत, मतलब उसी में सारे चीज छिपा हुआ है चीजें। अगर हम देखें तो ये सारे जो बातें हो रही है वहां पर खत्म हो जाती है। कि जैसे कि अभी भी हम 6 लोग अगर 6 ऑर्गन जैसा देखते हैं, तो सारे ऑर्गन अपने अपने जगह में काम कर रहे हैं। हाँ, और ये भी सही है कि सिस्टम मेक करने के लिए काम करे, पीस और वननेस उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दैट इज ए यूनिवर्सल सिस्टम। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम जैसे कर रहे हैं काम, तो ऐसे करते रहे और ऐसे फ्रीक्वेंटली मिलते रहे, बात करते रहे, एक दूसरे को सहयोग करते रहे। जो भी जो कर रहे हैं उनके जगह में सहयोग, क्योंकि गोल तो सबका एक ही है ना। और ये भी है कि विपुल भाई एक अलग मॉडल में काम कर रहे हैं, विश्वात्मा जी पॉलिटिकल, और वो एक कॉमन मैन के तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि सब कोई अपने अपने जगह में सही है कहीं पर, क्योंकि कोई एक एजेंडा में, गोल एक ही है, लेकिन हर जगह में जरूरत है काम करने की। ये इतना बड़ा चीज है कि सब एक साथ में भी नहीं काम कर सकते एक साथ में, है ना। तो हमको, मुझे ये लग रहा है कि हम धीरे धीरे इसके ऊपर चले, और मुझे लग रहा है कि जब ऋतु आएगा ना, तो अपने आप वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। उसके लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि देखिए अभी कोरोना था, तो इतने सारे चीज सब अपने अपनी जगह में काम कर रहे थे। कोरोना आया और ऋतु आया, मैं देखता हूँ तो ऋतु आया तो बहुत सारे चीज इकट्ठा हो गए, जो कि कभी कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये होने वाला है बोल के, है ना। क्योंकि हम सबने ये एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे चीजें ऐसा हो गया कि जो कि हमने सोचा ही नहीं था, जो हमको लगता था 10 साल में होने वाला था, और वो 1.5 साल के अंदर ही हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं पर हमको ये पहला चीज तो मुझे ये लग रहा है कि इस तरह के और भी लोग जुड़ना चाहिए, बातें करना चाहिए, और एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पूरा यूनिवर्सल का प्रिंसिपल जो है सहयोग के ऊपर टिका हुआ है। तो मैं हर बात बोलता कि 7 2 7 साथी हो, है ना, सहयोग 7 2 7 साथी हो। और ये जो सहयोग का जो भाव है ना, ये सहयोग भाव सिर्फ भाव नहीं है, जादू की छड़ी है। 7 2 7 साथी हो, ये बात बहुत बड़ी है। सहयोग भाव भाव नहीं, एक जादू की छड़ी है ना। कोसा कोसा मिलकर बनता है एक सुंदर बुद्धिमान इंसान। तो इंसान इंसान बनकर क्यों नहीं बना पाएंगे एक शांति समृद्ध जहां। 7 2 7 साथी हो, ये बात बहुत बड़ी है। सहयोग भाव सिर्फ भाव नहीं, एक जादू की छड़ी। तो सिर्फ सहयोग से ही हम ये अचीव कर सकते हैं। हमको जरूरत नहीं है कि हम सब एक ही सोच के ऊपर चले, एक ही चीज के ऊपर चले। हम जो जो काम कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को सहयोग करते चले, क्योंकि हमारे सबके गोल एक ही है ना। और मुझे लग रहा है कि अपने आप ही बन जाएगा। और अगर जहां जरूरत पड़ा कि चलो हमको 10 कदम साथ में चलना है, वहां 10 कदम साथ में चलेंगे, है ना। तो मुझे लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, बातें करनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करनी चाहिए,
जो भी जिस जगह में है, अगर मुझे कुछ जरूरत है, मैं विश्वात्मा जी को बोलूंगा कि मुझे ये जरूरत है जो आपके पास में है। सुधीर भाई को मैं बोलूंगा कि ये जरूरत है मुझे, ये आपके पास में है, ये सहयोग आप कर सकते हैं क्या, है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस बहुत फास्ट मूव होगा, और अगर हम लोग इसको अभी से इसको इस तरह से लेके चलेंगे ना, तो मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि वहां पर वो सहयोग, वो एक अपॉर्चुनिटी भी खत्म होते दिख रहा है ना। तो फिर मेरा से यही मैं कहना था। प्रस्ताव रख रहा हूं मैं कि क्या हम 2030 को हम टारगेट बना के चल सकते हैं। 2030 का एक एस्पिरेशनल टारगेट रखते हैं कि 2030 तक इस ग्रुप को ग्लोबल वननेस और पीस अचीव करने में एक मेजर रोल प्ले करना है। बोलिए। देखिए, मेरा जो पर्सनल टारगेट है 2029 का है। 2029 जी, तो ये ठीक है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसा सुधीर भाई ने बोला कि 10 साल में ये हो सकता है, तो मैं भी तो 2029, मुझे जो भी आप इंस्पिरेशन बोलो, जो भी सोच बोलो, जो भी चीजें है, वो मुझे 2029 का दिख रहा है। तो ठीक है, प्रस्ताव को चेंज करता हूं। क्या हम 2029 में हम कह सकते हैं कि हम ग्लोबल वननेस के खातिर हम मेजर रोल प्ले करेंगे, ये ग्रुप। There is no doubt about it. We are always together for that. या सुदीप? ओके, मेरे ख्याल में हम लोग आज मीटिंग को खत्म करें यहाँ पे, और अगला दिन डिसाइड करके बताइए, तो फिर मैं लिंक को एक्सटेंड, सेम लिंक हम लोग चालू रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अगर तो अभी ये डिसाइड, One suggestion. जी बोलिए। Yes, next time, how we will act, our agenda should be that. हाँ, तो मैं वही Yes. कोशिश करता How हूँ we कि will हर act. Our agenda should be how to act. So let's make a brief 5 minutes or 7 minutes Yes. presentation by everybody, suggesting Sure. how to do precise action. Definitely. No, Good. but Okay. I'm saying can 2029 be an aspirational target so that Why we not? work Yes. backward. Why not? We are No with you. problem. We We are work with you. backwards. कि if 2029 we have to achieve श्रीनाथ global भैया, oneness. अगर 10-15 हजार, ज्यादा नहीं, 10-15 हजार यंग लोग, यंग एट हार्ट, यंग इन एज, विच एवर वे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो 2 साल में देश तो बदल जाएगा। ये आज की संभावनाएं हैं, क्योंकि सारा कुछ पिघला हुआ है, उसको जो शेप देने वाले लोग चाहिए। लोहा पिघला हुआ है, उसको हाथ से आप शेप नहीं दे सकते। एक बहुत बढ़िया प्रोटेक्टेड ग्लोव चाहिए, उसको पकड़ के जो मर्जी बना सकते हो। ये शेप है आज की। वो डिटरमाइंड लोग चाहिए। तो आज का कंक्लूजन हम इतना कर सकते हैं कि 2029 हमारा कॉमन टारगेट है ग्लोबल वननेस अचीव करने का। नो प्रॉब्लम। और अगले मीटिंग में हम ये प्रेजेंट करेंगे अपना अपना तरीका, उसको कैसे अचीव किया जाए 2029 तक। मीटिंग आइडियली अगर हम स्टेप बाय को स्टेप, जाना है, विपुल को जाना है। सो लेट्स, मीटिंग किस दिन कितने बजे करनी है, बोलिए। प्रेफरेबली यही टाइम ठीक है, 9 बजे मेरे ख्याल से सबके लिए। 9 बजे नेक्स्ट संडे। 9 बजे? Yeah. ओके, डन। Everybody agrees? Yes. नेक्स्ट All संडे agree? 9 बजे। Next Sunday 9 PM, same link. ओके, सेम लिंक। Okay. फिर भी रीसेंड इट सुधीर। Yeah, I'll send it, but it is same link. And also the recording of the first meeting, and Vipul, the recording of this meeting. Recording of this meeting is also with me on cloud. I'll do it. Yeah, for the benefit of others. One Yeah, request. because Please note down the agenda with that, so that people will stick to it. no, the agenda we have decided now. Agenda Each one to present their model. Yeah. Presentation of not more than 7 minutes by talking or whichever way. Fine. To achieve global peace and oneness by 2029. Perfect. Okay. Perfect. Great. Okay. Great. Thank you, everybody.